سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا دفتر چیف جسٹس صاحب کے جو ہے احکامات کے تابع ہے بھی یا وہ اپنی من مانی کرتا ہے اور کسی اور کے احکامات پر چلتا ہے. بہرکیف ہم نے پھر ساری پارٹی نے آ کر اسی طرح احتجاج کیا کہ جناب آپ نے تاریخ دی تھی اور تاریخ پر کیوں دفتر نے نہیں لگایا. اس پر انہوں نے جو ہے پھر ہمیں تاریخ دی جس پر جو ہے پھر تاریخ لگی اور نوٹس ہوا. ہماری جو ہے جو پٹیشن تھی اس کو موشن میں لگا کر معطلی سزا کی جو ہے انہوں نے درخواست دی اور درخواست ہماری کو منظور کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے انہوں نے فریق دوسرے کو نوٹس دیا. اور نوٹس کے بعد آج کی ہمیں تاریخ دی ہوئی تھی جب ہم پچھلے یعنی بدھ کو آ کر سارے پیش ہوئے تو آج کی تاریخ تھی. لیکن پھر دفتر نے اس پر کوئی جو ہے عملداری نہ کی اور چنانچہ آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اور پھر ہم نے اندر جا کر چیف جسٹس صاحب سے بھی استدعا کی جس میں خود چیف علیمہ بی بی ان کی ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے یہ موجود تھے. علی ظفر صاحب موجود تھے. ہمارے چیئرمین بیرسٹر جو ہے گوہر صاحب موجود تھے اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے جو ہے نیازی صاحب موجود تھے. ہم نے جو ہے ان سے استدعا کی. علی ظفر میں نے نام لیا علی ظفر سینیٹر علی ظفر صاحب موجود تھے چونکہ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی تو ہم نے ان کو استدعا کی کہ جناب یہ تو پھر تاریخ نہیں لگائی ہے. تو آج الحمدللہ ہم تاریخ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو ہر صورت میں اس کی جو ہے عید سے پہلے سنوائی ہوگی سماعت ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اسے یکسو کیا جائے. اور ہمیں اس کا تباہی پھیر دی ہے اور بچے جو ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں. ان کی فیسیں اور ان کے اخراجات سے بھی وہ اس کو یونیورسٹی کو محروم کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ جس دن انشاءاللہ لگے گا کیس یہ اسی طرح ہوا میں پھینک دیا جائے گا جس طرح جو ہے آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کو اٹھا کے پھینکا ہائی کورٹ نے اور جس طرح سے عدت کیس کو سیشن کورٹ نے اپیل میں اٹھا کر پھینکا. اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے چند ردی کے پرزے ہیں صفحے ہیں جن کو انشاءاللہ جو ہے عدالت عالیہ ہمیں امید ہے کوئی بھی عدالت انصاف کرنے لائق ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس کو پھینکے گی. لیکن اور میں یہ ایڈ کر دوں کہ عدالت جب آزاد ہوگی یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عدالتیں اس وقت آزاد نہیں ہیں. ہم بار بار اپنے جج صاحبان کو ایک پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ نے خود کہا کہ آپ کو پریشر آتا ہے. آپ نے ایک لیٹر لکھا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارے پر پریشر ہوتا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ فیصلہ حق پہ فیصلہ کریں. آپ سے قوم کو امید ہے اس منصب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے. تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے یہ جو ایک ڈاکہ مارا گیا عدلیہ کے اوپر جمہوریت کے اوپر اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہیں اور نہ وہ اس لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد. تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر یہ 26ویں ترمیم کے. اس لیے ہم مخالف تھے ہم ہیں اور ہم رہیں گے اور ایسی ترمیم کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے انشاءاللہ. عوام نے پہلے بھی مینڈیٹ دیا عمران خان کو. انہوں نے چوری کیا ان بے شرموں نے چوری کیا چوری کروایا گیا اداروں نے مل کے چوری کروایا. اب ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مزید ترمیمیں کر رہے ہیں. ملک کے قانون کو انہوں نے لونڈی بنایا ہوا ہے. تو ہم پھر عدلیہ سے کہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کوئی پریشر نہ لیں آپ انصاف پہ فیصلے دیں. عمران خان صاحب پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں. یہ جو کیس ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں بینیفیشری ہی نہیں ہے نہ عمران خان صاحب نہ بشرا بی بی اور کیس نہیں لگ رہا تھا. الحمدللہ آج ہمیں عید سے پہلے 5 تاریخ انشاءاللہ پیشی ملی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب بحث ہوگی فیصلہ انشاءاللہ آئے گا تو پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈگوسلے مار کے اپنے آپ کو ننگا کر کے یہ نظام اور جو نظام چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کر رہے ہیں پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے ہماری تحریک جاری رہے گی. عمران خان کے ساتھ ہم تھے ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ. اور وجہ کیا ہے اس کی پوری قوم سن لے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. کون سی ڈیٹ
आप कुछ कहेंगी नहीं मिलती आपको डेट या पहले भी 5 को अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, इसलिए लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। 5 को अगर नहीं सुनते इसके बाद आप क्या लाएअमल देंगे? देखें, बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा और इंशाअल्लाह अब जो इस लिस्ट के अंदर आ गया है तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बात ये नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से वक्त कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। बड़ा मुख्तसर कहा है, एक मिनट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे देखिए मैं से सीधे से ठीक है, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 समझ नहीं आता है कि क्या दफ्तर चीफ जस्टिस साहब के जो है अहकामात के ताबे है भी या वो अपनी मनमानी करता है और किसी और के अहकामात पर चलता है। बाहर कैफ हमने फिर सारी पार्टी ने आकर इसी तरह एहतजाज किया कि जनाब आपने तारीख दी थी और तारीख पर क्यों दफ्तर ने नहीं लगाया। उस पर उन्होंने जो है फिर हमें तारीख दी, जिस पर जो है फिर तारीख लगी और नोटिस हुआ। हमारी जो है जो पटिशन थी उसको मोशन में लगाकर मुअत्तली सज़ा की जो है उन्होंने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त हमारी को मंजूर करते हुए, समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने फरीक दूसरे को नोटिस दिया। और नोटिस के बाद आज की हमें तारीख दी हुई थी, जब हम पिछले यानी बुध को आकर सारे पेश हुए तो आज की तारीख थी, लेकिन फिर दफ्तर ने उस पर कोई जो है अमलदारी न की और चुनाचे आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और फिर हमने अंदर जाकर चीफ जस्टिस साहब से भी इस्तदा की, जिसमें खुद चीफ अलीमा बीबी उनकी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हमशीरा और हमारे जो है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, हमारे चेयरमैन बैरिस्टर जो है गौहर साहब मौजूद थे और साथ ही जो है हमारे जो है न्याजी साहब मौजूद थे। हमने जो है उनसे इस्तदा की, अली ज़फ़र मैंने नाम लिया, अली ज़फ़र, सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी तो हमने उनको इस्तदा की कि जनाब ये तो फिर तारीख नहीं लगाई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तारीख लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को हर सूरत में इसकी जो है ईद से पहले सुनवाई होगी, समाअत होगी और कोशिश की जाएगी कि इसे यकसू किया जाए। और हमें उसका तबाही फेर दी है और बच्चे जो है वो कस्म पुरसी के आलम में हैं, उनकी फ़ीसें और उनके अखराजात से भी वो उसको यूनिवर्सिटी को महरूम किया गया है। तो इसलिए ये जिस दिन इंशाअल्लाह लगेगा केस, ये उसी तरह हवा में फेंक दिया जाएगा जिस तरह जो है आपने देखा कि साइफर केस को उठा के फेंका हाई कोर्ट ने और जिस तरह से इद्दत केस को सेशन कोर्ट ने अपील में उठाकर फेंका। इसकी भी हैसियत वही है कि इंशाअल्लाह ये कागज़ के चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाअल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने लायक होगी तो वो इंशाअल्लाह इसको फेंकेगी। लेकिन और मैं ये ऐड कर दूं कि अदालत जब आज़ाद होगी, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आज़ाद नहीं हैं। हम बार बार
अपने जज साहिबान को एक पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी हैं और न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब ढीठ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अदलिया से कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह ढगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले, वजह ये है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। कौन सी डेट अभी मिली आपको? 5 तारीख को जिंदाबाद। आप कुछ कहेंगी नहीं मिलती आपको डेट, या पहले भी 5 को अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। 5 को अगर नहीं सुनते इसके बाद आप क्या लाए अमल देंगे? देखें बात यह है कि उसके बाद का जो लाए अमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह अब जो इस लिस्ट के अंदर आ गया है, तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बात इसलिए नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से जिबल असबाब कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है, कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। बड़ा मुख्तसर कहा है, एक मिनट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे, देखिए मैं से सीधे से ठीक है, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2